Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 30th of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that you are feeling confident now. We are almost at the end of the course and you are feeling much more confident in understanding the topics that I have been imparting to you. We will start today's lecture as per our routine with the summary of the last lecture. We have been discussing graphs in the last lecture. So we started with the problem shortest path problem. Basically, the shortest path problem is the problem of finding a path between two vertices or you can say the nodes in a graph such that the sum of the weights of its constituent edges is minimized. Means the root should be the shortest one and the sum of the weights is to be minimized. And this is analogous to the problem of finding the shortest path between two intersections on a road map. Vertices corresponds to intersections and the edges correspond to the road segments, each weighted by the length of its road segment. First of all, we discuss the shortest path for the undirected graph. Two vertices are adjacent when they are both incident to a common edge. And if a pair is in an undirected graph is a sequence of vertices such that Vi is adjacent to Vj. And so such that I is greater than equals to 1 and it should be less than equals to n. Such a path P is called the path of length n from V1 to Vn, and the Vi are the variables. Numbering here relates to their position in the sequence. And similarly, the shortest path for the directed graph is the weighted directed graph, and the length will be the summation of the directions from V1 to Vn. The problem is also sometimes called the single pair shortest path problem to distinguish it from the other variations such as the single source shortest path problem, means in which we have to find the shortest path from a source vertex V to all other vertices in the graph. Single destination shortest path problem, in which we have to find shortest path from all vertices in the directed graph to a single destination vertex V. This problem can also be reduced to a single source shortest path problem by reversing the arcs in the directed graph. So, and you can also the third variation is the all pairs shortest path problem, in which we have to find the shortest path between each pair of vertices V and V dash in the graph. And these generalizations, they have significant more efficient algorithm than the simplistic approach of running a single pair shortest path on all the relevant part of the vertices. And this shortest path may not be unique. There may exist more than one shortest path in a graph. So we also discussed the properties of the shortest path. If the P is the shortest path between S and V, where S is the source vertex and V is the destination vertex, then all subpaths of P, they are the shortest path. And we have the triangular inequality. It means that if the length of the shortest path is defined by gamma, then if X is one vertex among the path vertices, then gamma of U and X should be less than or equal to U of V. Or if X is adjacent to Y, then V is less than also the weight of the V. Then we discuss about the three algorithms for solving this problem. The first one is the de Castros algorithm. The de Castros algorithm is the distance of vertex V from a vertex S, which is a source one, is the length of a shortest path between S and V. De Castros algorithm computes the distances of all vertices from a given start vertex S, and we take some assumptions that the graph is connected, the edges are undirected, and the edge weights are non-negative. It doesn't handle the non-negative weights because it will makes the problem more complex. What we do, we grow a cloud of vertices beginning with S and eventually covering all the vertices. We store with each vertex V a label dV representing the distance of V from S in a subgraph consisting of the cloud and its adjacent nodes.
At each step, we add to the cloud the vertex u, which resides outside the cloud with the smallest distance label. We update the labels of the vertices which are adjacent to u. And at each step, we also consider an edge E such that u is the vertex most recently added to the cloud Z in the cloud. The algorithm uses a priority queue which stores the vertices outside the cloud. The key is the distance, the element is basically the vertex, and we will use the locator based methods. Insert KE will return a locator, replace KE will be the changes of the item, and we discussed the algorithm, and I hope it is clear to you. And then the other algorithm that we discussed was the Bellman-Ford algorithm. This also works even with the negative weights. It must assume directed edges, for otherwise we could have the negative weight cycle. Iteration I finds all the shortest path that uses I edges, and its running time is big O to the order of n into m. And we also discussed the algorithm, which was very simple, and I hope you understand it well. The third algorithm we discussed was the all pairs shortest path, which find the distance between every pair of vertices in a weighted directed graph G. In this way, we can make n number of calls to the Dijestra's algorithm if no negative edges, which takes big O to the order of n m log n. Likewise, n calls to Bellman-Ford would take big O to the order of n square m time, and we can achieve big O to the order of n cube time using the dynamic programming, which is similar to the Floyd-Warshall algorithm. And we discussed that also, the algorithm for the all pairs of the shortest path, and I sincerely hope it is well clear to you. The next topic was the spanning tree. A spanning tree T of a connected undirected graph G is a tree which is composed of all the vertices and some, or perhaps all, of the edges of the graph G. Informally, a spanning tree of graph G is a selection of edges of G that forms a tree spanning every vertex. And that is, every vertex lies in the tree, but no cycles, no loops are allowed. Then the graph can be said as a spanning tree. And a spanning tree of a connected graph G can also be defined as a maximal set of edges, or G of G, such that there contains no cycle, or we can say as a minimal set of edges that connects all vertices. A spanning tree of a graph is just a subgraph that contains all the vertices, and it is a tree. A graph may have many spanning trees, and we have shown you the examples of a graph which can have many spanning trees. And the variation of the spanning tree is the minimum spanning tree. A minimum spanning tree or minimum weight spanning tree is then a spanning tree with weights less than or equal to the weight of every other spanning tree. More generally, any undirected graph, not necessarily connected, has a minimum spanning forest, which is a union of minimum spanning trees for all of its connected components. The example we can take, one would be a telecommunication company laying cable to a new neighborhood. If it is constrained to bury the cable along only certain paths, then there would be a graph representing which points are connected by those paths. And some of those paths might be more expensive because they are longer or require the cable to be buried deeper, and these paths would be represented by edges with larger weights. So a spanning tree for that graph would be a subset of those paths that has no cycles but still connects to every house. There might be several spanning trees possible. And a minimum spanning tree would be the one with the lowest total cost. The minimum spanning tree for a given graph is the spanning tree of minimum cost for that graph. And then we discussed the two algorithms for traversing the minimum, for finding the minimum spanning tree. One is the Kruskals algorithm and other is the Prim's algorithm. In the Kruskals algorithm, to obtain a minimum spanning tree of a graph, a novel approach is used, which is the Kruskals algorithm. In that algorithm, we consider G is an undirected graph, and it should be a weighted graph with n vertices.
and the spanning tree is empty. The algorithm first of all will create a forest of trees. Initially, the forest consists of the n single nodes. We can say single node trees means having no edges, and at each step we add one edge, which is the cheapest one, so that it joins the two trees together. If it were to form a cycle, it would simply link two nodes that were already part of a single connected tree, so that this edge would not be needed. And there are very few simple steps. The first step is the forest is constructed with each node is a separate tree. Then the edges are placed in a priority queue, and until the step 3 is until we have added n-1 edges, we will repeat the following steps. The first step is extract the cheapest edge from the queue, and number 2, if it forms a cycle, we will reject it. If it does not form a cycle, then we will add it to the forest, and adding it to the forest will join the two trees together. So every step will have joined two trees in the forest together, so that at the end there will be only one tree in the forest. And we also analyze the complexity of the Kruskal's algorithm. Running time is big O to the order of m log n, where m is the number of edges and n is the number of nodes or vertices. Testing if an edge creates a cycle can be slow unless a complicated data structure called a union find structure is used. It usually only has to check a small fraction of the edge, but in some cases, like if there was a vertex connected to the graph by only one edge and it was the longest edge, it would have to check all the edges. This algorithm works best, of course, if the number of edges is kept to a minimum. And the other algorithm for making the minimum spanning tree is the Prim's algorithm. This algorithm starts with one node. If then one by one add a node that is unconnected to the new graph, each time selecting the node whose connecting edge has the smallest weight out of the available nodes connecting the edges. The steps are: the new graph is constructed with one node from the old graph, and while new graph has fewer than n nodes, find the node from the old graph with the smallest connecting edge to the new graph. And then the step number 2 is added to the new graph. So every step will have joined one node, so that at the end we will have one graph with all the nodes, and it will be the minimum spanning tree of the original graph. We also done the complexity analysis of the Prim's algorithm. The running time is big O to the order of m plus n log n, where m is the number of edges and n is the number of nodes or vertices. If a heap is not used, then the runtime will be big O to the order of n square instead of big O to the order of m plus n log n. Unlike Kruskal's, it doesn't need to see all the graph at once. It can deal with it one piece at a time. It also doesn't need to worry if adding an edge will create a cycle, since this algorithm deals primarily with the nodes and not with the edges. For this algorithm, that means the Prim's algorithm, the number of nodes need to be kept to a minimum in addition to the number of edges. For small graphs, the edges matter more, while for large graphs, the number of nodes matters more. So my dear students, I hope that the last lecture is well clear to you. So we will now start today's lecture. Today we will start a new topic. We will discuss dictionaries. We will discuss the concept and its implementation, and then how to implement dictionaries. With the tables, we will deal with the concept of the tables, operations and implementations. Array-based, linked list-based, AVL means, and the hash table. And then comes the main topic, the hash table, with the concept, hash and hashing functions, hash table implementation,
and we'll discuss about some chaining, open addressing and overflow area, and finally we will discuss some of the applications of the hash tables. So dictionaries, जैसा कि आपने देखा भी होगा, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी है, उर्दू की लुगत है, it always have a collection of pairs. So it has a key और उसमें एलिमेंट, दो चीजें होंगी, एक की होगी और एक एलिमेंट होगा. एंड द पेयर्स, टू पेयर्स, दे विल हैव डिफरेंट कीज. कीज जो है वो यूनिक होंगी. अब इस डिक्शनरीज पर आप ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं कि यू कैन गेट द की, यू कैन पुट द की एंड द एलिमेंट, एंड यू कैन रिमूव द की. अब जैसे डिक्शनरी की एक एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे इसकी नॉर्मल लाइफ में या कंप्यूटिंग में क्या हो सकती है, तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स इन अ क्लास. तो उसमें एक की एलिमेंट जो है उसमें स्टूडेंट नेम होगा, दैट विल बी द की, एंड द लीनियर लिस्ट ऑफ असाइनमेंट्स एंड एग्जाम स्कोर्स विल बी द एलिमेंट्स. अब जो स्टूडेंट नेम है विच इज द की इज दैट इज डिस्टिंक्ट. एग्जाम्पल जैसे हमने गेट द एलिमेंट हुज की इज अहमद हसन. With the key हम उससे सर्च करेंगे, we'll get that element, and we will update the element whose key is रहीम खान is another example. कि एक और स्टूडेंट है, रहीम खान है, हम उसके एलिमेंट मीन्स के उसके जो स्कोर्स हैं in the assignments, in the exams, we have to update it. तो उसमें जो है वो will put the implemented as the update when there is already a pair with the given key, and remove is followed by the put. अब डिक्शनरी में आपके डुप्लीकेट्स भी हो सकते हैं. कीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्टिंक्ट. जैसे वर्ड्स की अगर आप डिक्शनरी देखें तो उसमें बेसिकली आपके क्या होता है कि पेयर आर ऑफ द फॉर्म वर्ड और मीनिंग, जिसमें वर्ड इज द की और उसके जो मीनिंग है दैट कैन बी एन एलिमेंट. एंड आपने बहुत सारी अपनी एनकार्टा को देख लें, मैरियम वेबस्टर है, कोई भी हो, इनके फिरोज की भी अगर आप इंग्लिश वाली डिक्शनरीज देखें तो इट समटाइम्स बाज वर्ड्स आपके ऐसे हैं कि दे मे हैव टू और मोर एंट्रीज फॉर द सेम वर्ड. अब इंग्लिश में फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ बोल्ट. अब बोल्ट जो है वो जैसे जिसको पेज भी आप कहते हैं, उस सेंस में अगर आप कहेंगे तो इट्स अ थ्रेडेड पेन. उसका एक मतलब ये भी है. अब क्रैश ऑफ थंडर की जो आवाज आती है उसको भी हम लाइटनिंग बोल्ट कहते हैं, वो भी बोल्ट है. सेम की है, मीनिंग डिफरेंट है. बोल्ट का एक और मतलब ये भी है टू शूट फोर्थ सडनली. बोल्ट का मतलब जो है वो गल्प भी है, घूंट भरना. एंड बोल्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड रोल ऑफ क्लॉथ को भी बोल्ट कहते हैं. इसके अलावा इस तरह और भी मीनिंग हो सकते हैं. तो कीज मे नॉट नेसेसरली बी यूनिक, वो सेम भी हो सकती है, मीनिंग एलिमेंट डिफरेंट है. तो अब हम इसको डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कैसे करें. हम इसको रिप्रेजेंट, एक तो तरीका ये है कि वी कैन रिप्रेजेंट एज अ लीनियर लिस्ट. अब लीनियर लिस्ट में मुराद ये है कि हम उसको डिफाइन ये कर सकते हैं कि L इज अ लीनियर लिंक लिस्ट where E0, E1, E2, E3 so on up till En-1. अब ये एलिमेंट्स हैं आपके, और each E1, EI जो है इट इज अ पेयर. ये पेयर है, ये खाली एलिमेंट नहीं, इट इज ऑलवेज अ पेयर, की एंड एलिमेंट बोथ. तो अगर आप एज्यूम करते हैं, एग्जांपल है कि अगर आपकी 5 पेयर डिक्शनरी है जिसको हम D से डिफाइन कर रहे हैं, तो उसमें 5 पेयर कौन से हैं, A, B, C, D और E. अब जो A है उसमें अपनी उसकी A की होगी और एक उसका एलिमेंट होगा. इसी तरह B की अपनी की होगी, B का अपनी एलिमेंट होगा, एंड सो ऑन. अब इसको हमने कंप्यूटर में अगर लीनियर लिस्ट को सेव करना, तो हमने अभी तक आपको याद हो कि हमने 2 मेथड्स से पढ़ा है कि हम इसको चाहे तो एरेज के साथ भी कर सकते हैं और चाहे तो पॉइंटर के थ्रू हम लिंक लिस्ट भी बना सकते हैं. तो अभी हम इस पर थोड़ा सा राय रखते हैं. अगर हम इसको एरे के तौर पर रिप्रेजेंट करें, जैसा कि हम आपको दे रहे हैं, तो एरे में भी जो है वी कैन हैव 2 ऑप्शन. अनसॉर्टेड एरे भी हो सकता है और वो सॉर्टेड एरे भी हो सकता है. इन द केस ऑफ अनसॉर्टेड एरे, तो अगर हम जो गेट की का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें हमने फाइंड करना है, सर्चिंग करनी है, तो उसका जो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा वो बिग गो टू द ऑर्डर ऑफ साइज होगा, उतना टाइम लेगा. क्योंकि अगर आपको नहीं मिलता तो आपको सिक्वेंशियली सर्च तो करना है एंड तक, तो बिग ओ इसको आप एन भी कहते हैं.
अगर आपने उसको पुट करना है, ऐड करना है, तो अगर आपको डुप्लीकेट को भी अगर आपने वेरीफाई करना है कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं है, तो आपको पूरी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी। तो उस केस में जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ एन आ जाएगी, मीन साइज। और अगर आपने उसको सिर्फ लिस्ट में एंड पर अपेंड करना है तो फिर हम उसको कांस्टेंट ले जाएंगे, क्योंकि वो आपको एक हम उसका सब्सक्रिप्ट रखते रहेंगे और सीधा वहीं पे जाके आपने अपेंड कर देना। इन दैट केस द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी कांस्टेंट, बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ 1। रिमूव मीन्स हमने डिलीशन करनी है, तो वो भी हमारा पूरा जो वो साइज होगा वो चलेगा, क्योंकि हमें लॉजिकली मैंने कहा था कि हम शिफ्टिंग करते हैं एरेज के केस में, क्योंकि फिजिकली डिलीट नहीं कर सकते, तो हम उसकी मूवमेंट करें। अब एक जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ जाता है एरे रिप्रेजेंटेशन, वो सॉर्टेड एरे है कि एलिमेंट्स को हमें ये अज्यूम करना है कि दे आर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ की में वो सॉर्ट हुए हुए ए बी सी डी ई। अब इस केस में चूंकि आपकी सॉर्टेड है, एरे है, हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, तो गेट की जो है वो लॉग ऑफ साइज आ जाएगा, लॉग ऑफ एन। पुट करना है तो वो भी आपको उसको फाइंड करने टू वेरीफाई द डुप्लीकेट्स, लॉग एन, लॉग साइज। मगर अगर आपने उसको ऐड करना है एट द एंड, अपेंड करना है, तो जो कि वो सॉर्टेड है तो फिर आपको उस सॉर्टिंग में पूरा उसको ढूंढना पड़ेगा, तो मैक्सिमम जो है वो बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ साइज उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। और अगर आपने उसको रिमूव करना है तो देन अगेन एरे है, आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो इसलिए उसकी बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ साइज जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। डिक्शनरीज की हम जो दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है एरेज के, हमने देख लिया उसके कॉम्प्लेक्सिटी। लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, लिंक लिस्ट है, जैसे आप एक फर्स्ट नोट के लिए पॉइंटर रख लेंगे। अब जो पहला जो आपका पेयर होगा वो लिंक रखेगा नेक्स्ट का, नेक्स्ट रखेगा नेक्स्ट, सो ऑन, और आखिर पे जो है आप जैसे फिगर में आपको ये देख रहे हैं कि विल पुट द नल पॉइंटर। अब उसमें हम दो केसेस लेंगे, एक अनसॉर्टेड चेन और एक सॉर्टेड चेन। तो अगर अनसॉर्टेड चेन है, इफ यू हैव टू फाइंड, तो आपको सर्चिंग सिक्वेंशियली करनी पड़ेगी। तो गेट की के जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ साइज, टाइम लगेगा। आपने उसको पुट करना है तो वो पूरी आपको सिक्वेंशियली सर्च करनी पड़ेगी। सो बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ साइज इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डुप्लीकेट्स। अगर आपने उसको फ्रंट में ऐड करना है या एंड पर ऐड करना है, तो आप उसको, हमने उसमें देखा हुआ है कि हमने पॉइंटर अगर हम रख लें तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ 1। रिमूव करना तो हमें पूरा सर्च करके ढूंढना पड़ेगा, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ साइज विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सॉर्टेड चेन है, एलिमेंट्स आर, हमें अजम्पशन है कि आर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ की। उसमें भी आप ये देखें कि अब हमारा जो लिंक लिस्ट है वो पहला, अब हम एज्यूम करें कि ये जो पहला है असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा है की वो सबसे आगे होगा, उसके बाद नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है, सॉर्टेड ऑर्डर में असेंडिंग में चलता जा रहा है। एंड द लास्ट एलिमेंट विल कंटेन्स द नल, बिकॉज उसके आगे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं। गेट की का जो ऑपरेशन है वही, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वही बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ साइज ही रहेगी। पुट की का अगर वेरीफाई करना है तो वो भी वही रहेगा। अगर आपने ऐड करना है एट द एंड, अपेंडिंग करना है, तो फिर आपका जो है वो कांस्टेंट है। अदरवाइज सॉर्टिंग के लिए आपको पूरी सर्चिंग करनी पड़ेगी, तो वर्स्ट केस वो साइज एन ही आ जाएगा। रिमूव द की इज ऑल्सो वर्स्ट केस सिनेरियो इज बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ साइज, और यू कैन से बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ एन जो है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आई होप कि ये जो डिक्शनरीज की रिप्रेजेंटेशन है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब डिक्शनरी की अगर आप एप्लीकेशंस देखें तो बहुत जो है, एंड मेनी एप्लीकेशंस दे रिक्वायर अ डायनामिक सेट दैट सपोर्ट्स डिक्शनरी ऑपरेशंस। एग्जांपल है कि अ कंपाइलर व्हिच मेंटेन्स द सिंबल टेबल वेयर कीज करेस्पॉन्ड्स टू आइडेंटिफायर्स, क्योंकि जब वो सिंटैक्स एनालिसिस करता है, ग्रामर पार्सिंग करता है, तो वो उस वक्त कंस्ट्रक्ट करता है सिंबल टेबल। और जब उसने सिमांटिक एनालिसिस करना होता है उस वक्त उसने रेफर करना होता है सिंबल टेबल को, जिसमें एंट्रीज जो है वो आइडेंटिफायर्स के हिसाब से होती है, जो वेरिएबल नेम्स, फंक्शन नेम्स या दूसरे जो चीजें हैं, दीज आर ऑल, या कांस्टेंट नेम्स जो है, दीज आर ऑल आइडेंटिफायर्स। टेबल की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टेबल। बेसिकली इज एन एब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज डिवाइस, या आप इसको एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप भी कह सकते हैं, दैट कंटेन्स एंट्रीज। इसको हम इंप्लीमेंटेशन ऑफ टेबल्स के थ्रू करेंगे। एंड ईच टेबल एंट्री कंटेन्स द यूनिक की, के अब हम की को यहां पर के कह रहे हैं।
and each table entry may also contain some information. इसको I कह लें, associated with, हर की के साथ कोई information भी associated, तो ये पेयर बन जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि each entry in a table is an ordered pair ki. अब इसमें ऑपरेशंस क्या है जो टेबल पे आप कर सकते हैं? आप इंसर्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कॉमन ऑपरेशन है आप इंसर्ट कर सकते हैं. गिवन अ की एंड एन एंट्री, वी इंसर्ट द एंट्री इनटू द टेबल. फाइंड मीन सर्च करना है. गिवन अ की, वी फाइंड द एंट्री एसोसिएटेड विद द की इन द टेबल. रिमूव का ऑपरेशन है. सो गिवन अ की, we will find the entry which is associated with the key and we will remove it from the table. अब next हमारा जो आता है कि how we will implement the table. क्योंकि normally आपकी जो programming languages है उसमें कोई built in data type कोई इस किस्म की implemented या hardware level पर नहीं है. तो हमारी जो choice होगी कि how we have to represent the table abstract data type will depend on the answers on the following question. कि हम ये जो questions है अगर हम इनको सही आंसर कर पाएं, then it will be easy for us to decide how to represent table. पहला सवाल ये हो सकता है कि how often are entries inserted and removed? उनकी frequency क्या है? Occasional है या frequent है? उसके साथ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी तो देखना है. हाउ मेनी ऑफ द पॉसिबल की वैल्यूज आर लाइकली टू बी यूज्ड? क्योंकि यूनिवर्स में तो बहुत ज्यादा हो सकती हैं की वैल्यूज, तो उसमें से आप लाइकलीहुड क्या है? और फिर आपकी जो सर्चिंग है, व्हाट इज द लाइकली पैटर्न ऑफ सर्चिंग फॉर द कीज? विल मोस्ट ऑफ द एक्सेसेस बी टू जस्ट 1 और 2 की वैल्यूज, या ज्यादा भी हो सकती हैं? क्या हमने टेबल का जो साइज है वो उसको स्मॉल एनफ रखना है कि वो मेमोरी में फिट हो सके? एंड हाउ लॉन्ग विल द टेबल एग्जिस्ट? क्या उसकी हमें जो ड्यूरेशन जो है ऑफ एग्जिस्टेंस वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए चाहिए या होल ऑफ द प्रोग्राम के लिए चाहिए? अगर वी कैन डिसाइड ऑन दीज क्वेश्चंस, वी कैन आंसर देम, देन इट विल बी इजी फॉर अस टू डिटरमिन कि हम टेबल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. अब वो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन, वी कैन ऑल्सो यूज अनसॉर्टेड सिक्वेंशियल एरे. अब चूंकि उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इसको हमेशा आप एरे ऑफ स्ट्रक्ट, जिसको हम सी लैंग्वेज में कहते हैं, ये एरे ऑफ रिकॉर्ड्स एरे होगा, मगर ये रिकॉर्ड्स होगा कि जिसमें हम फिलहाल एज्यूम करें कि देयर आर 2 एंट्री, वन इज द की एंड वन इज द एरे. वन इज द की एंड वन इज द एंट्री जो कि उस की के साथ एसोसिएट. अनसॉर्टेड एरे में अगर आपने बैक ऑफ द एरे पे मींस अपेंड करना है तो आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी. और उसके केस में सर्चिंग है, चूंकि अनसॉर्टेड है, आप बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते. यू हैव टू डू इट बाय सिक्वेंशियल सर्च. तो पोटेंशियली ऑल ऑफ हो सकता है. तो वर्स्ट केस सिनेरियो वी गो टू द ऑर्डर ऑफ एन. अब रिमूव में सबसे पहले आपने फाइंड करना है, उसके बाद आपने रिप्लेस करना है. वी हैव टू रिप्लेस द रिमूव नोड विद द लास्ट नोड. तो इसमें वही चूंकि सीक्वेंशियल है, वर्स्ट केस सिनेरियो वी गो टू द ऑर्डर ऑफ एन. सेकेंड मेथड जो है वो सॉर्टेड सिक्वेंशियल एरे है, एन एरे इन विच टेबल नोड्स आर स्टोर्ड कंसेक्टिवली एंड दे आर सॉर्टेड बाय की. अब चूंकि इसमें इंसर्ट है तो इंसर्ट करना है, चूंकि हमने सॉर्टेड ऑर्डर में, तो सर्चिंग तो करनी पड़ेगी थ्रू आउट. तो इसके केस में बिग गो टू द ऑर्डर ऑफ एन इज द वर्स्ट केस सिनेरियो. आप जो एलिमेंट लगाते हैं वही अगर सबसे आखिर में आता है तो आपको एंड पे तो ढूंढना पड़ेगा. फाइंड करना तो वो आसान है, बाइनरी सर्च है, एरेज एफेक्ट्स है, मिडल से शुरू हो जाएंगे और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन हो जाएगी, लॉगरिथमिक हो जाएगी. रिमूव करना है तो आपने सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द नोड, देन यू हैव टू रिमूव द नोड एंड शफल डाउन, मूवमेंट करेंगे. तो उसके लिए वही वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो इज बिग गो टू द ऑर्डर ऑफ एन. एंड फाइंडिंग के लिए हम बाइनरी सर्च इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम उसको सबस्क्रिप्ट की मदद से मिड पॉइंट निकाल के तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं. लिंक लिस्ट के जरिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. टेबल नोड्स आर अगेन सॉर्टेड कंसेक्टिवली, आर स्टोर्ड कंसेक्टिवली,
बट दे कैन बी अनसॉर्टेड और सॉर्टेड लिंक लिस्ट बन जाएगी। अगर आपने उसको एडिशन इंसर्शन जो है फ्रंट पे करनी है और तो वो हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, मगर अगर सॉर्टेड लिस्ट है तो उस केस में वो वी गो टू द ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। फाइंड सर्च करना है, सर्च थ्रू पोटेंशियली ऑल द कीज वन एट अ टाइम, चाहे वो सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो। आप चूंकि इसमें इंडेक्सेस का सिलसिला नहीं है लिंक लिस्ट के केस में, तो इन बोथ केसेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी वी गो टू द ऑर्डर ऑफ n। और इसी तरह जब आप रिमूव करना है, यू हैव टू फाइंड वन, सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा एंड देन रिमूव यूजिंग द पॉइंटर ऑल्टरेशंस। हमने ऑलरेडी लिंक लिस्ट डब्ल्यू लिंक लिस्ट के केस में देखा हुआ है। तो फाइंडिंग में चूंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट हैं, तो इसलिए उसका जो वर्स्ट केस सिनेरियो है दैट इज वी गो टू द ऑर्डर ऑफ n। हम इसको AVL ट्री के जरिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि ये AVL ट्री बन जाएगा आपका, और AVL ट्री में ये देखें की है एंट्री है, की है एंट्री, इस तरह आपका बन जाएगा एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। और ऑर्डर बाय की है चूंकि, तो इसमें इंसर्शन अगर आप करेंगे तो स्टैंडर्ड इंसर्ट है तो वी गो टू द ऑर्डर ऑफ log n बन जाएगा। स्टैंडर्ड फाइंड है विदाउट रिमूविंग ऑफ कोर्स, सर्चिंग है log n हो जाएगा। और स्टैंडर्ड रिमूव है वो भी हमने देखा हुआ AVL ट्रीज की, जब हमने वो एल्गोरिथम देखे थे, तो रिमूव एंड डिलीशन इज ऑल्सो log of n, लॉगरिथमिक है। एक और मेथड है डायरेक्ट एड्रेसिंग का। हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो कीज है वो इन द रेंज है 0 to m-1 एंड वी अज्यूम कि ऑल कीज दे आर डिस्टिंक्ट। तो आइडिया इज कि हम एक इसको एरे में रख लेते हैं कि उसके जिसका इंडेक्स जो है वो 0 से m-1 होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम x को उसके i सबस्क्रिप्ट में उस वक्त स्टोर करेंगे कि जब x बिलोंग्स टू द टेबल एंड की ऑफ x इज बेसिकली वो इंडेक्स बन जाएगा i, जो की है वही आपका इंडेक्स बनेगा। और अगर वो टी में टेबल में उसकी जो की जो है वो अगर अब 0 to m-1 के अंदर नहीं है तो हम उसको स्टोर ही नहीं करेंगे, नल कर देंगे। एंड दिस इज कॉल्ड अ डायरेक्ट एड्रेस टेबल के, जिसमें की जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है द एड्रेस, द इंडेक्स ऑफ द सबस्क्रिप्ट ऑफ द अरे। और उसमें फिर सिंपल है कि जैसे ही आपको वो सबस्क्रिप्ट मिलेगा तो आपको टाइम तो आपको सर्चिंग तो करनी नहीं है, तो उसी एड्रेस पे जाके करना है। तो लिहाजा आपके जितने ऑपरेशंस हैं, चाहे वो फाइंड का हो, इंसर्ट का हो, डिलीट का हो, कांस्टेंट आ जाएगा। ऑपरेशंस विल टेक वी गो टू द ऑर्डर 1। ये सिचुएशन, दिस मेथड जो है, ये टेक्निक वर्क्स वेल व्हेन द यूनिवर्स यू ऑफ की इज रीजनेबली स्मॉल। मगर अगर आपका जो यूनिवर्स है, नंबर ऑफ कीज, रेंज ऑफ कीज अगर बहुत बड़ी हो जाएगी तो स्टोरिंग अ टेबल टी ऑफ साइज यू मे बी इम्प्रैक्टिकल given the memory available on a typical computer। तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि the set k of the keys actually stored may be so small relative to u that most of the space allocated for t would be wasted। यूनिवर्स बहुत बड़ा हो सकता है, अगर उसके हिसाब से अगर हम एरे बनाएंगे तो वो तो वेस्ट रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कीज जो आनी है वो अगर आपके लेट्स सपोज कि आप स्टूडेंट नेम के अगर आप रखते हैं या CNIC के ऊपर रखते हैं। अब CNIC जो है वो तकरीबन आपका है 14 डिजिट्स का आ जाता है, ठीक है जी। तो उसमें आप ये देखें तो उसमें फिर अगर आपके जो एक क्लास में स्टूडेंट्स मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं। अगर आप उसकी बेस पे स्टोर करना शुरू होंगे तो वो आपको तो बहुत बड़ा एरे चाहिए, वो स्पार्स हो जाएगा, वो डेंस नहीं रहेगा, यूजलेस हो जाएगा। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में अगर आप ये देखें तो फिर आप ये कह सकते हैं कि ये अब यूनिवर्स है और ये के जो है ये इसका सबसेट है कि जिसके ये पॉसिबल कीज हो सकती हैं। तो फिर तो ये डायरेक्ट है कि आप इसके अंदर जो है उसके थ्रू आप एक लिंक लिस्ट बना लें, जिसके अंदर की रख लें, ये पॉइंटर रख लें इसमें उसी एड्रेस पे, ये टी जो है वो टेबल आपका वो उस पर रख लें और उसके हिसाब से आप उसको आगे लिंक लिस्ट बनाते रहें। एग्जाम्पल किया गया, टेबल हमने रखना है फॉर 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, की इज 9 डिजिट, जैसे अमेरिका में होता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर है टू आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट। तो अगर आप इसके डिफरेंट जो पेयर्स बनेंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट 9 डिजिट नंबर इज 10⁻⁹। तो द फ्रैक्शन ऑफ एक्चुअल की नीडेड, बेसिकली हमें तो सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए। तो वो अगर आप ये देखें तो वो 0.00005% बनता है जो हमें एक्चुअली चाहिए 50 स्टूडेंट्स के लिए।
और अगर हम इसके हवाले से देखेंगे तो आपकी 99.99995% विल बी वेस्टेड। तो आपका जो आइडियल टेबल है जो हमें चाहिए वो टेबल शुड बी ऑफ स्मॉल फिक्स साइज होना चाहिए, और एनी की इन द यूनिवर्स शुड बी एबल टू बी, हम उसको मैपिंग को अगर कर सके इनटू द स्लॉट ऑफ द टेबल, वी नीड सम मैपिंग फंक्शन। कि आपकी जो कीज ऑफ यूनिवर्स, जैसे अगर हम सोशल सिक्योरिटी नंबर के केस में लेते हैं और 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें क्या करना है कि उसके सोशल सिक्योरिटी नंबर पर कोई ऐसी मैपिंग करनी है कि वो 0 से 49 के दरमियान ही वैल्यू निकाले, ताकि हम उस पर जो है उसको जाके स्टोर कर लें। तो जो द नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन जो और है वो हैशिंग है। डायरेक्ट एड्रेसिंग तो उस तरह से, तो ये जो इंप्लीमेंटेशन है इसमें द एरे इन विच टी जो टेबल नोड्स हैं इसमें आर नॉट स्टोर्ड कंसेक्टिवली, देयर प्लेस ऑफ स्टोरेज इज कैलकुलेटेड यूजिंग द की एंड हैश फंक्शन। तो बेसिकली क्या है कि अब हम उस की के ऊपर कोई हैश फंक्शन लगाएंगे और उससे हम एरे इंडेक्स जनरेट कर लेंगे जो इसके अंदर आएगा, क्योंकि एरे का साइज तो फिक्स होता है, उसकी मैपिंग करेंगे। तो ये हैश फंक्शन हमें बेसिकली चाहिए जो हमें उसको मैप करेगा कि उसके अंदर, ताकि हम जैसे वो की जनरेट हो हम उसके इंडेक्स पे जाएं, उसको स्टोर कर दें। तो अब इसमें क्या होगा कि आपका जो एरे है वो आप कंसेक्टिव स्टोरेज नहीं होगी, बट वो स्पार्स इधर उधर वो फैल जाएगा। कीज एंड एंट्रीज दे विल बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द एरे। तो हैशिंग जो है वो क्या है, बेसिकली आइडिया क्या है कि वी विल यूज अ हैश फंक्शन h टू कंप्यूट द स्लॉट फॉर ईच की, और देन उसके बाद जो की हमें जब मिल जाएगी, स्लॉट मिल जाएगी, वी विल स्टोर द एलिमेंट इन स्लॉट जो कि हमें उस हैशिंग फंक्शन से मिल जाएगी। हैश फंक्शन जो है h बेसिकली क्या करेगा, वो उस की को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू एन इंडेक्स इन अ हैश टेबल t जिसका इंडेक्स है 0 to m-1। इट मीन्स कि k इज द की, हम उस पर कोई ऐसा हैश फंक्शन लगाएंगे कि वो 0 से m-1 में ट्रांसलेट कर दे। तो यहां पर आप यही देखें कि हैशिंग ऑफ द यूनिवर्सल फंक्शन विल एंड अप इन फ्रॉम 0 to n-1। तो हम ये कह सकते हैं कि द की k हैशेस स्लॉट h ऑफ k। तो अभी तक हैश टेबल के हवाले से अगर हमने जो पहले अभी तक जो स्ट्रक्चर जितने पढ़े हैं, सर्च स्ट्रक्चर सो फार, दे रिलाइड ऑन अ कंपैरिजन ऑपरेशन। वो किसी न किसी कंपैरिजन करते थे, तो उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो या तो बिग टू द ऑर्डर ऑफ n थी या लॉगरिथमिक हो जाती थी log ऑफ n। तो हम एज्यूम करते हैं कि वी हैव अ फंक्शन के ऐसा फंक्शन है की का, की पर हम ऐसा फंक्शन लगाएं कि उसका जब भी जवाब आए वो इंटीजर होगा। It means a function that maps a key to an integer. अब हमें देखना है कि what performance might we expect now. Simplest case हम देखते हैं स्ट्रक्चर के हवाले से हैश टेबल के। Assume आपके जो आइटम्स हैं they have integers की in the range 1 to m. तो अब हम क्या है कि we will use the value of the key itself, जो अगर आपको यहां से नजर आ रहा है, to select a slot in the direct access table, कि हम उसी का इंडेक्स निकाल लेंगे। ये देखें वही इंडेक्स है, वो इसी के अंदर हम स्टोर करेंगे। तो इट इज अ डायरेक्ट एक्सेस टेबल में ये बेसिकली इट्स अ एरे ऑफ रिकॉर्ड्स। टू सर्च फॉर एन आइटम विद की के, जस्ट लुक इनटू द स्लॉट के। इफ देयर इज एन आइटम देयर वी हैव फाउंड इट, इफ द टैग इज 0 इट मींस इट इज मिसिंग। अब आपकी सर्चिंग जो है वो कांस्टेंट हो गई, बिग टू द ऑर्डर 1। मगर इसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है कि कीज आपकी यूनिक होनी चाहिए, कीज मस्ट लाई इन अ स्मॉल रेंज। फॉर स्टोरेज एफिशिएंसी कीज मस्ट बी डेंस इन द रेंज, स्पार्स नहीं होंगी। इफ दे आर स्पार्स तो आपकी वैल्यूज के दरमियान में गैप्स आ जाएंगे, एंड अ लॉट ऑफ स्पेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन द स्पीड। तो अब हमने ये देखना है कि हमने स्पीड की तरफ ट्रेड ऑफ करना है या स्पेस की तरफ करना है। अब हम वहां पर इन कंस्ट्रेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स करके देखते हैं। जैसे कीज मस्ट बी यूनिक है, अगर हम इसको रिलैक्स करते हैं कि भाई कीज यूनिक नहीं हो सकती, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि नाउ वी हैव टू मेंटेन कंस्ट्रक्ट अ लिंक लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट्स एंड दैट डुप्लीकेट्स विल बी अटैच्ड। आप ये जैसे फिगर में आपको देख रहा है, अगर आपकी की आई जो है वो एक से ज्यादा दफा आ रही है तो उसके लिंक में आप फिर उसको रखेंगे। पहला इसमें रख लेंगे एरे में, या स्ट्रक्चर इसमें अब हम फील्ड ऐड कर देंगे जो लिंक रखना शुरू कर देगा।
So if a search can be satisfied by any item with k key, the performance is still 0 to 1. But if the item has some other distinguishing feature which must be matched, so we will get big O to the order of n max. n max की power आ जाएगी, where n max power जो है is the largest number of duplicates, or will be the length of the longest chain. अगर आपके कीज इंटीजर्स हैं, we need a hash function, means कि हम की को इस तरह हैश करेंगे कि वो इंटीजर में आए. It means the one maps a key into an integer. So applying this function to the key, we will produce an address, and if h maps each key to a unique integer in the range 0 to m-1, तो आपकी search again is constant, big O to the order of 1. अब हैश फंक्शन के एग्जांपल हम देखते हैं कि क्या हो सकता है. कि जैसे आपकी जो की है, हम अज्यूम करते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ASCII कोड्स में जो जिसमें हम स्टोर करते हैं. तो अब हम हैश फंक्शन में क्या चीज पॉइंट करेंगे कि हम एक तो वो स्ट्रिंग पास करेंगे कैरेक्टर्स का, और साथ में उसका साइज पास करेंगे. हम बेसिकली क्या करेंगे इस हैश फंक्शन में, विल पास टू आर्गुमेंट्स, वन इज द स्ट्रिंग एंड अदर इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग. हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं कि सम को 0 कर रहे हैं, एंड वाइल n को साथ रिड्यूस भी करते हैं कि सम के अंदर हम उसको बेसिकली s की वैल्यू स्टोर करते जाएंगे. और आखिर में हम क्या करेंगे कि जब सम जो भी निकलेगा उसका हम मॉड लेंगे, रिमाइंडर लेंगे, 256 में जब डिवाइड करेंगे तो आपकी हमेशा जो हैश फंक्शन है इट विल रिटर्न अ वैल्यू इन द रेंज ऑफ 0 to 255. और इसमें हम चाहें तो XOR फंक्शन इज आल्सो कॉमनली यूज, जिसमें हम वो भी कर सकते हैं. बट एनी फंक्शन दैट जनरेट्स इंटीजर इन द रेंज 0 to m-1 for some suitable not too large m will do. तो ये उस वक्त तक जो है वो as long as the hash function itself is big O to the order of 1 वो रहेगा, परम्यूटेशंस उसमें होती रहेगी. अब इसमें कुलियंस भी हो सकती कि यही हम हैश फंक्शन अगर हम देखें यही से सिमिलर है कि हम उसमें दो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग भी पास कर रहे हैं और उसका इंटीजर भी पास कर रहे हैं, और हम उसको मॉड ले रहे हैं. तो अगर हम इस हैश को ये दो दफा कॉल करें, एक ए बी के साथ और कैपिटल ए एंड बी, बेसिकली हम उसके ASCII कोड्स को ऐड कर रहे हैं, और एक हैश करें हम बी ए और उसके साथ भी 2, उसकी लेंथ 2 है, तो ये दोनों सेम वैल्यू रिटर्न करेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड अ कुलियन. अब क्या करें? नाउ वी नीड अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स फॉर रिजॉल्विंग द कुलियन. अब जैसे हमने आपको ये कुलियंस कैसे हो रहे हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि ये आपकी यूनिवर्स ऑफ कीज है और ये आपकी एक्चुअल कीज है जो कि उसका सबसेट है. तो हैश फंक्शन ने बेसिकली क्या करना है कि कोई भी यूनिवर्सल जो की आएगी उसने उसको 0 से m-1 में करना. अब हमने जब यहां पर किया K1 जो है वो तो यहां पर मैप हो रहा था, K4 डिस्टिंक्टली यहां पर मैप हो गया, K3 वो भी यहां पर मैप हो गया 0 से m-1 के दरमियान. मगर आप ये देखें कि K2 और K5 जो कीज हैं दे आर बोथ हैशिंग और वो इक्वल टू एक यार यहाँ पे कुलियन हो गया. दोनों एक साथ स्टोर नहीं हो सकती, ओनली वन ऑफ देम कैन बी स्टोर्ड, और तो कुछ नहीं, कुलियन हो गया. अब क्या करें? तो कुलियन जो है हैश का टेबल जो है हैश टेबल साइज m है. कुलियन अकर्स व्हेन हैशिंग ऑफ Ki एंड हैशिंग ऑफ Kj विद की जो है वो दोनों बराबर आ जाए, एंड वेयर I इज नॉट इक्वल टू J, वो दोनों बराबर नहीं है, I और J बराबर नहीं है. तो अब हम हैश टेबल में कुलियन हैंडलिंग की तरफ आते हैं कि हाउ वी विल हैंडल द कुलियंस. Kulian occurs when the hash functions they maps two different keys to the same address or same index. अगर आप arrays की बात कर रहे हैं उसके हवाले से तो we are generating the same index. अगर हम linked list के हवाले से generating the same index, the same address. So our table must be able to recognize first of all that a collision occurs and then it has to resolve this. दो portion, पहले चीज है recognize करना. तो वो क्या करें? we'll store the actual key with the item in the hash table itself. we'll compute the address करेंगे, वो basically की का हैशिंग करेंगे तो k will be the address आ जाएगा, और हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो हिट है. if table of key dot key is equals to key then hit, otherwise अब हम क्या करेंगे? we'll try next entry, we'll do something else.
और ये ट्राई नेक्स्ट एंट्री की हम स्कीम्स अभी तो आगे देखते हैं। पहले तो रिकॉग्नाइज करना है, अगर कोलिजन रिकॉग्नाइज हो गया द सेकंड स्टेप इज अगेन कि उसको रेजोल्यूशन कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। अब उसकी भी वैरायटी ऑफ टेक्निक्स हैं, तो वो अभी हम देखते हैं। तो हाउ द हैश टेबल विल बी इम्प्लीमेंटेड, विल डिस्कस एट द 4 टेक्निक्स को हम देखेंगे। वन इज चेनिंग, द अदर इज ओपन एड्रेसिंग, इसको क्लोज्ड हैशिंग भी कहते हैं। द थर्ड टेक्निक इज ओवरफ्लो एरिया एंड फोर्थ इज द पॉकेट्स। ये हमने कोलिजन जो है रेजोल्यूशन उसको देखना है। चेनिंग जो है इट इज अ टेक्निक फॉर रिजॉल्विंग द कोलिजन्स। तो अब हम क्या करेंगे कि नाउ द लिंक लिस्ट विल बी अटैच्ड, ठीक है जी, फॉर ईच प्राइमरी टेबल स्लॉट, वो आप उसके अंदर कर देंगे। तो अगर आपका जो HI और HI1 जो है ये अगर बोथ हैशिंग करके दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक I को उसमें रख देंगे और उसके अगर लिंक में उसके अंदर चेन बना देंगे और I1 उधर आ जाएगा और आखिर में नल कर देंगे। और अगर आपका जैसे ये K के केस में कि HFK, HFK1, HFK2 ये तीनों हैशिंग होके एक ही इंडेक्स निकाल रही हैं, तो हम पहले K को स्टोर कर लेंगे, उसके लिंक में K1 को रख देंगे, उसके लिंक में K2 को रख देंगे एंड सो ऑन। तो अगर हमने सर्चिंग करनी है I1 की, तो वी विल कैलकुलेट, सबसे पहले करेंगे हैशिंग करके I1 कैलकुलेट कर लेंगे। हम उनके टेबल में देखेंगे I डजंट मैच, तो हम उसके लिंक से फॉलो करेंगे तो I1 पर चले जाएंगे। और अगर हमें वो नहीं मिलेगा, इफ नल फाउंड, तो इट मीन्स कि वो जो की है वो टेबल में मौजूद नहीं। The idea is to put all elements that hash to the same slots into a linked list। वो आप लिंक लिस्ट में बनाते जाएंगे। यहाँ पे जैसे कोलिजन के हम केस में K1, K4 आर मैचिंग, तो उसमें हम लिंक लिस्ट में बना देंगे चेनिंग। बेसिकली K5, K7, K2 यहाँ पर हो रहे हैं, उनको हम लिंक लिस्ट बना देंगे। K3 सिंगल है तो उस तरह रहेगा, K6 और 8 है उसको भी लिंक लिस्ट में बना देंगे। तो आपकी जो स्लॉट J है कंटेन्स अ पॉइंटर। अब बेसिकली हम उनको तमाम को जो है वो लिंक लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं, टेबल के अंदर स्टोर नहीं कर रहे। टेबल जो है वो हमारा बेसिकली पॉइंटर्स हैं। इट विल स्टार्ट टू द, इसमें हम उसको स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट को ही रखेंगे। एंड स्लॉट J कंटेन्स अ पॉइंटर टू द हेड ऑफ द लिस्ट, अनदर वेरिएशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट हैश टू J। एंड अब उसमें ये देखना है कि हाउ टू चूज द साइज ऑफ द हैश टेबल M। तो उसमें यह है कि वी शुड बी स्मॉल इनफ टू अवॉइड वेस्टिंग स्पेस, and it should be large enough to avoid many collisions and keep the link list short। नॉर्मली आप क्या करते हैं कि इसका जो साइज हैश टेबल है वो टिपिकली 1/5 और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके हिसाब से रख देते हैं। अब दूसरा इशू ये है कि चेनिंग में जो लिंक लिस्ट बन रही है, शुड बी यूज सॉर्टेड लिंक लिस्ट और अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो अनसॉर्टेड अगर रखेंगे तो उसमें इंसर्शन फास्ट हो जाएगी, वी कैन इजीली रिमूव द मोस्ट रिसेंटली इंसर्टेड एलिमेंट। अगर हम उसको सॉर्टेड में रखेंगे तो आपको चूंकि सर्चिंग करनी पड़ेगी, हमने ऑलरेडी देखा है कि वो टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इट डिपेंड्स कि आपने किस चीज को फॉलो करना है। अब आपके ऑपरेशंस हम चेनिंग के केस में हम दे सकते हैं कि हैश टेबल पे ऑपरेशंस क्या परफॉर्म होंगे। वी कैन हैव द चेन्ड हैश सर्च, जिसमें हम T टेबल देंगे और साथ में K की देंगे। We will search for an element with key K in the list, जो है वो बेसिकली T of H of K हैशिंग के साथ। The running time depends on the length of the list of the elements in slot H of K। हैश इंसर्ट का जो है उसमें भी हम 2 देंगे। We'll assume कर रहे हैं कि we will insert X at the head of the list, तो उसमें जो है it will take जो है वो constant time लेगा। Insert will also take constant time overall since lists are unsorted। डिलीशन करनी है, डिलीट X from the linked list, वो उसी पे हम हैशिंग करेंगे, वो आपका कांस्टेंट टाइम लेगा। फाइंडिंग द आइटम्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट इन स्लॉट H, उसकी लेंथ कितनी बड़ी है, वो जो कि अनसॉर्टेड है उसको सर्चिंग हमें करनी पड़ेगी। जितना लिस्ट छोटी होगी आप एलिमेंट को क्विकली फाइंड कर लेंगे। अगर हम एनालिसिस करें वर्स्ट केस का, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सर्च फॉर एन एलिमेंट विद अ गिवन की। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है आपका कि आपकी जितनी भी कीज हैं वो एक ही सेम स्लॉट पे कर दें, तो आपकी ये चेन सबसे बड़ी बन जाएगी। तो बेसिकली इसमें जो वर्स्ट केस सिनेरियो बनेगा वो आपका बिग O टू द ऑर्डर ऑफ n प्लस द टाइम टू कंप्यूट द हैश फंक्शन, वो इसमें ऐड हो जाएगा।
एवरेज केस क्या है, ये डिपेंड करता है कि हाउ वेल योर हैश फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स द n कीज अमंग द m स्लॉट्स, वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो, फार्मूला क्या लगाया आप। अंडर द फॉलोइंग assumption के जैसे n जो है वो बिग O टू द ऑर्डर ऑफ m है, अगर वो आप करिए एनी गिवन एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू हैश इनटू एनी ऑफ द m स्लॉट्स, तो इसको हम कहते हैं सिंपल यूनिफॉर्म हैशिंग प्रॉपर्टी है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसका जो टाइम होगा देन इन दैट केस कांस्टेंट हो जाएगा, बिग O टू द ऑर्डर ऑफ 1 प्लस यू नीड द टाइम टू कंप्यूट द हैश फंक्शन, कि उनका इक्वली चांस है कि वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएंगे। द सेकंड टेक्निक, जो चेनिंग तो हमने देख लिया, अब एक और भी है रिजॉल्विंग द कोलिजन, इज द ओपन एड्रेसिंग, जिसको हम क्लोज्ड हैशिंग भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सो फॉर वी हैव स्टार्टेड द हैशिंग विद चेनिंग यूजिंग अ लिंक लिस्ट टू स्टोर द कीज दैट हैश टू द सेम लोकेशन। तो मेंटेनिंग लिंक लिस्ट इन्वॉल्व्स यूजिंग पॉइंटर्स। अब पॉइंटर को शुरू दिन से आपको अर्ली लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि हैंडलिंग पॉइंटर इज कॉम्प्लेक्स एंड इनएफिशिएंट इन बोथ स्टोरेज एंड आल्सो द टाइम रिक्वायरमेंट्स। So another option is to store all the keys directly in the table and this is known as open addressing। हम keys को उसके अंदर रख लें, and where collisions are resolved by systematically examining other table indexes 0, 1, 0, I0, I1 until an empty slot is found। जैसे collision हो तो हम टेबल से बाहर नहीं जाएंगे, हम लिंक लिस्ट नहीं रख रहे, हम टाइम बचाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको आगे देखना शुरू करेंगे, वहां पे तो collision हो गया, चलिए नेक्स्ट कोई अवेलेबल स्लॉट है, तो जैसे कि हमको नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट मिलेगी हम उसको वहां पे स्टोर कर देंगे। बेसिकली ये इट्स अनदर अप्रोच फॉर कोलिजन रेजोल्यूशन। ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द हैश टेबल इटसेल्फ, हम स्पेस वेस्ट नहीं करेंगे। एंड सो जब हमने हैश टेबल के अंदर ही सब कुछ स्टोर करना है तो देन देयर इज नो नीड ऑफ अ लिंक लिस्ट, नो नीड ऑफ चेनिंग। तो सिंपल है कि इंसर्शन में क्या होगा, इफ द स्लॉट इज फुल वी विल ट्राई अनदर स्लॉट and another until an open slot is found। इसको हम कहते हैं, दिस टेक्निक इज कॉल्ड प्रोबिंग, कि हम प्रोब करते रहेंगे कि जब तक हमें एम्प्टी स्लॉट ना मिल जाए। और सर्च करना है, वी विल फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ प्रोब्स एज वुड हैव बीन यूज्ड व्हेन इंसर्टिंग द एलिमेंट। तो उसके एंड पर हमें पता लग जाएगा कि वो एलिमेंट मौजूद है या नहीं। आइडिया इज कि टू स्टोर द कीज इन द टेबल इटसेल्फ, नो लिंक, नो नीड टू यूज द लिंक लिस्ट एनीमोर। द बेसिक आइडिया है कि जैसे आपने हैश किया तो वो 79 पे आया, if the slot is full you try another one until you find an empty slot। तो यहाँ पे बेसिकली वो प्रोब सीक्वेंस है, वो तरह चलता जाएगा, जैसे आपको मिलेगा वहां पे डाल देंगे। सर्च विल फॉलो द सेम, सर्चिंग भी करनी तो उसी तरह हम सर्चिंग करेंगे। डिलीशन है, यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस केस, वो हम देखते हैं अभी कैसे। तो सर्च टाइम जो है वो आपका प्रोब सीक्वेंस की लेंथ पे डिपेंड कर जाएगा कि हाउ लॉन्ग दैट विल टेक। तो अब वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ओपन एड्रेसिंग में हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने 14 को इंसर्ट करना था तो 79 पे किया, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, जब यहाँ पे मिल गया तो कर लिया। तो हैश फंक्शन कंटेन्स 2 आर्गुमेंट्स, द की वैल्यू एंड द प्रोब नंबर। तो प्रोबिंग के लिए नंबर रखना कि कैसे प्रोब करना। तो अब उसमें हम 2 पैरामीटर्स देंगे, वन इज द के which is the key, another is the p, और p जो है वो प्रोब्स जो है वो आपकी हैश इंडेक्स, उसमें टेबल इंडेक्स के अंदर आएंगी 0 to m-1। तो अब आपका प्रोब सीक्वेंस क्या बनेगा कि आपने अगर हैशिंग के लिए पहले k0 को करेंगे, अगर k0 के साथ नहीं है तो फिर आप k1 के साथ करेंगे, अगर वो नहीं होता तो फिर k2 के साथ करेंगे एंड सो ऑन। तो प्रोब सीक्वेंस मस्ट बी अ परमुटेशन ऑफ 0 to m-1। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर पॉसिबल m फैक्टोरियल पॉसिबल परमुटेशंस। तो एग्जांपल आपकी ये है कि आपका ये प्रोब सीक्वेंस अगर हम 14 के हिसाब से करें तो हो ये हो सकता है कि 14-0, 14-1, 14-2 जो है वो आपको प्रोब सीक्वेंस ऐसे बने कि 1, 5 and 9 कुछ इस तरह वो हमने वो रखा हुआ है। तो अभी ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो कॉमन जो आपकी ओपन एड्रेसिंग के जो मेथड है कि प्रोबिंग करनी कैसे, तो उसमें जो है linear probing is one of the method, quadratic probing is another method, double hashing is another method, but none of these methods they can generate more than m square different probe sequences। सबके साथ ये
अब हम लीनियर प्रोबिंग को देखते हैं कि इसमें रीहैश फंक्शन बेसिकली दोबारा आपसे प्रोब करना है तो यू हैव टू हैश फंक्शन। तो अब इसमें लीनियर प्रोबिंग में क्या है कि हम इसको जब रीहैश जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम में हम +1 ऐड कर देंगे कि गो टू द नेक्स्ट स्लॉट अंटिल यू फाइंड एन एम्प्टी। यानी कि अगर आपने के और जे को यहाँ पर किया तो वो ये इसी एक पे निकल रहे हैं, तो आप उसके अंदर +1 करें एंड नेक्स्ट वी स्टोर इन दी नेक्स्ट स्लॉट। बट इसमें इट इज अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन हैव इट कैन लीड टू बैड क्लस्टरिंग। Rehashing will fill in the gaps between other keys and exacerbate the collision problem. तो ये क्लस्टरिंग क्रिएट कर देगी। तो लीनियर प्रोबिंग में है कि द की इज द फर्स्ट मैप टू अ स्लॉट, जैसे इंडेक्स I0 विल बी H1K एंड इफ देयर इज अ कोलिजन तो सब्सिक्वेंट प्रोब्स आर परफॉर्म्ड। तो आप उसको हम ये भी कह सकते हैं कि IJ+1 जो है उसमें IJ+C कांस्टेंट रखेंगे, उसको हम मॉड फंक्शन लगा के रिमाइंडर्स m के अंदर लेंगे for j is greater than or equals to 0, and if the offset constant c and m are not relatively prime, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो we will not examine all the cells. For example, अगर आप ये कंसिडर करें कि m4 है and c is equals to 2, then only every other slot is checked. अगर c is equals to 1 करेंगे the collision resolution is done as a लीनियर सर्च, हम उसको बार बार देख रहे हैं। तो इसमें जो है अगर हम इंसर्शन कर लिए हैश टेबल में तो बड़ा आसान है कि हम टी और के पास करेंगे, आई को 0 कर देंगे, रिपीट करेंगे, हम हैशिंग कर के ऑफ आई को साथ करते जाएंगे। अगर तो उसमें जे जो हैशिंग करके निकलेगा उसको जे में कर लेंगे। अगर टी ऑफ जे इक्वल टू निल है तो हम क्या करेंगे कि हम टी ऑफ जे के अंदर की डाल देंगे और रिटर्न कर देंगे जे को, हमने यहाँ पर डाल दिया। एल्स हम क्या करेंगे कि आई इज इक्वल टू I+1 करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्या I इक्वल m हो गया है। अगर नहीं हुआ तो हम उसकी रीहैशिंग करेंगे एंड विल कीप ऑन द प्रोसेस। अगर इसके बराबर आ जाएगा इट मींस कि वो टेबल पर खत्म हो गया। और जब यहां से निकलेंगे तो हम कहेंगे कि हैश टेबल ओवरफ्लो कर गया, इट मींस द टेबल इज ऑलरेडी फुल एंड वी कैन नॉट ऐड मोर। तो इसमें जो आपका वर्स्ट केस है फॉर इंसर्टिंग अ की दैट इज बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n, सर्चिंग करनी फ्रॉम द हैश टेबल बहुत आसान है। वही सर्च में टी और के डालेंगे, I0 करेंगे जे को, वही हैशिंग फंक्शन लगाएंगे। अगर वो के अगर उसके बराबर है हम रिटर्न जे कर देंगे, खत्म होगी सर्चिंग, वी फाउंड इट। अगर वो नहीं है तो आई को हम करेंगे। अब कब तक करेंगे, जब तक टी ऑफ जे निल हो या I इज इक्वल टू m ना हो जाए, हम करते रहेंगे। एंड पे हम रिटर्न कर देंगे निल, इट मींस द सर्च वाज अनसक्सेसफुल। इसमें वो जो वर्स्ट केस है फॉर सर्चिंग अ की इज बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n, बट रनिंग टाइम डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द प्रोब सीक्वेंसेस, कि आप कैसे कर रहे हैं, हैशिंग फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। एंड वी नीड टू कीप प्रोब सीक्वेंसेस शॉर्ट टू एंश्योर फास्ट सर्च। डिलीशन का केस जो मैंने कहा था कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वी हैव टू लुक इट वेरी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द स्लॉट कंटेनिंग द की टू बी डिलीटेड। सबसे पहले वो स्लॉट फाइंड करनी है। Can we just mark the slot as empty? It would be impossible to retrieve keys inserted after that slot was occupied. अगर उसको डिलीट करेंगे तो प्रोबिंग आगे कैसे जाएगी, वो तो फिर उसके लिए मसला हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, we will mark the slot with the sentinel value deleted। तो इसके लिए फिर हमें एक बेसिकली एक एक्स्ट्रा फील्ड रखना पड़ेगा एंट्रीज का, कि जो वो फुल है, एम्प्टी है या रिमूव्ड है। फुल मीन्स कि ऑलरेडी उसमें वो एलिमेंट की पड़ी हुई है, एम्प्टी मीन्स कि खाली आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, और रिमूव मीन्स कि डाटा तो पड़ा है मगर उसको यूज नहीं करना क्योंकि उसके आगे प्रोबिंग करनी है। तो द डिलीटेड स्लॉट कैन लेटर बी यूज्ड फॉर इंसर्शन। इसलिए इसके मैंने कहा था कि जो डिलीट का ऑपरेशन है वो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वी आर एज्यूमिंग कि एरे को हम ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने डिलीट करना है 98 को, तो प्रोबिंग में अब देखें 79 लीड कर रहा है इसको 98 को। 98 से आगे आपने 14 पे जाना है, लिहाजा इसको आपने डिलीट नहीं करना, इसको मार्क करना है, हमें मार्क करना पड़ेगा। अब अगर हम ओपन एड्रेसिंग की अगर हम करें डिसएडवांटेजेस, द पोजीशन ऑफ द इनिशियल मैपिंग I0 ऑफ के की इज कॉल्ड द होम पोजीशन होगी। व्हेन सेवरल इंसर्शंस मैप टू द सेम होम पोजीशन they end up placed contiguously in the table।
तो दिस कोलिजन ऑफ कीज विद द सेम होम पोजीशन जो है वो क्लस्टर बना देगा। जितने यूं वो क्लस्टर बढ़ता जाएगा, the probability that a key will map to the middle of a cluster वो increase करती जाएगी, which will increasing the rate thus increasing the rate of the cluster growth. तो this tendency of linear probing to place items together is known as primary clustering हो जाएगी। तो as these clusters grow, they merge with other clusters forming even bigger clusters and which can grow even faster. तो इसमें प्राइमरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम देखेंगे कि लॉन्ग चंक्स जो हैं, ये आपकी स्लॉट बी जो है 2/m पर आई है, स्लॉट डी जो है वो 4/m पर आई है, तो अब ये देखें कि ये साथ क्लस्टरिंग होना शुरू हो रही है। स्लॉट ई जो है वो 5/m पर आ गई, तो इसको आप ये देखें कि वो साथ यहाँ पे क्लस्टर बनना शुरू हो गया। सो लॉन्ग चंक्स ऑफ ऑक्यूपाइड स्लॉट्स को यहाँ बन रहा है, कोई यहाँ बन रहा है, कोई यहाँ बन रहा है, वो बनना शुरू हो गया। एज अ रिजल्ट सम स्लॉट्स दे बिकम मोर लाइकली देन अदर्स। तो उसमें आप बेस्ट टाइम किया है कि यू कैन जो प्रोब सीक्वेंसेस हैं आप उनकी लेंथ को इंक्रीज कर दें, मगर इसके साथ साथ ध्यान रखें कि आपका सर्च टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। और हम इनिशियली हम ये इसमें इस एग्जांपल में बेसिकली है कि ऑल स्लॉट्स हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/m इक्वल उसमें है। अब दूसरा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है, हमने लीनियर प्रोबिंग देखी थी, अब हम क्वाड्रेटिक पे देख लेते हैं मैनी वेरिएशंस। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में जो है बेसिकली क्या है, अब हम ये करेंगे कि एच जो है रीएश करेंगे वो हम CI² करेंगे ऑन द IS प्रोब। ये इसके जरिए हम जो है वो प्राइमरी क्लस्टरिंग को अवॉइड कर लेंगे, बट अनदर प्रॉब्लम सेकेंडरी क्लस्टरिंग शुरू हो जाएगी अकर्स बिकॉज वन ऑल कीज विच कोलाइड ऑन H of X फॉलो द सेम सीक्वेंस। जब फर्स्ट आपने H और J और H की वो भी A पे आ गया, तो फिर आप ये देखेंगे तो देन A + C और A + 4C + A + 9C, तो सेकेंडरी क्लस्टरिंग जो है वो जनरली लेस प्रॉब्लम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी क्लस्टरिंग। तो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में हम ये कह सकते हैं कि H हैशिंग जो करेंगे उसमें हम सेकेंड हैशिंग जो है वो H.K + C1i + C2i² mod m करेंगे for I 0 to m-1। It will lead to a secondary clustering which is milder in form from the primary clustering. The clustering effect can be, हम उसको और ज़्यादा improve कर सकते हैं by increasing the order of the problem। हम उसको cubic पे भी लेके जा सकते हैं, मगर हम जितना उसको हम cubic पे उसकी powers पे लेके जाते जाएंगे our hash function becomes more expensive to compute. But again for the two keys K1 and K2, if HK1, 0 equal to HK hashing of 0 implies K2 that HK1i is equal to HK2i। डबल हैशिंग एक और टेक्निक है, हमने आपको शुरू में याद हो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि रिकॉल दैट इन ओपन एड्रेसिंग द सीक्वेंस ऑफ प्रोब्स फॉलोज ij+1 is I of j plus c mod m for all j greater than equals to 0। And we can also solve the problem of primary clustering जो कि बन रही थी in linear probing by having the keys with mapped to the same home position using different probe sequences। In other words, the different values for C should be used for different keys। ये हम आपकी डबल हैशिंग कर रहे हैं। तो डबल हैशिंग refers to the scheme of using another hash function for C, जिसमें हम कहेंगे आप J+1 जो है ij + h, ये सेकेंड हैश फंक्शन हो जाएगा mod m for J, और इसमें जो है आपके H2 की जो है वो आपकी बेसिकली 0 से m-1 के दरमियान ही रहेगी। यूजिंग अ सेकेंड हैश फंक्शन मैनी वेरिएशंस है, जनरल टाइम इसकी रीहैशिंग भी है। जैसे आपका H और J जो है दे आर रिजॉल्विंग टू द सेम, ये आपका प्राइमरी एरिया 0 to m-1, तो K को आप सबसे पहले स्टोर कर लेंगे, ऐड को J करना है, J को भी अब बेसिकली उस पर आपने किया हैशिंग की, वो सेम आपका किया आया, तो वो विल रिपीट अंटिल वी फाइंड एन एम्प्टी स्लॉट, और उसमें हम उसको ये सेकंड हैश फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसमें प्रोबिंग सीक्वेंस डिफरेंट भी हो सकता है H-J, उसके बाद हम जब जैसी जगह मिलेगी हम उसमें स्टोर कर देंगे। तो सर्चिंग में आपको सबसे पहले H of X के जरिए सर्च करना, नहीं मिलता तो सेकंड हैश फंक्शन H-X से आप उसको सर्च करेंगे। एडवांटेज क्या है कि इट हैंडल द क्लस्टरिंग बेटर, जो प्राइमरी क्लस्टरिंग की हम बात कर रहे थे। डिसएडवांटेज है कि इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। सो हाउ मेनी प्रोब सीक्वेंसेस कैन डबल द हैशिंग जनरेट? इट कैन बी, वर्स्ट केस जो है वो m² है। जैसे अगर इसमें एग्जांपल लेते हैं कि H1 के हमने K mod 13 किया और सेकंड हैश फंक्शन क्या है कि 1 + K mod 11, हम इसमें देखें वो चीज डिफरेंट करती है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये mod of 13 के साथ हम करेंगे। तो इंसर्ट अगर हम करें 11, अगर हमने 14 को इंसर्ट करना है तो अब i इज इक्वल टू 0 है, तो 14 0 और ये h1 जो किया 14 के साथ, h1 के mod जो mod किया 14 तो वो 1 आया। ठीक है जी, 1 आया, 1 पे ऑलरेडी बुक्ड है 79। तो i इज इक्वल टू 1 किया, h14 1 के साथ किया। अब h14 1 बेसिकली क्या होगा कि h प्लस h mod of 13, तो उसमें हम करेंगे कि h2 mod 14 अगर हम करेंगे, अब इसमें क्या होगा, अब k आपकी 14 है, 14 mod 3 प्लस 1 इज 4 बन जाएगा, क्योंकि ये mod 11 निकल गए, 3 इज रिमाइंडर, 3 प्लस 1 इज 4, तो यहाँ पर 4 आया। 4 को हमने इसमें पहले वाले में ऐड करेंगे तो वो हमारा पहला जवाब आया था 4 प्लस 1 और वो हमारा 5 बन गया। तो mod 13 से किया 5, तो अब हम 5th प्लेस पर गए 98, ये भी बुक्ड है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड प्रूफ करेंगे, उसमें वही है +2 mod 13, हम उसको डबल हैशिंग करेंगे, तो वो जब आप करेंगे तो वो 2 दफा 4 प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है ना जी, 4 प्लस 4 प्लस 1 इज 9, mod 13 करेंगे तो वो हमें 9 मिल जाएगा। तो 9th इज द एम्प्टी स्लॉट, तो यहाँ पर हम 14 स्टोर कर देंगे। दिस इज डबल हैशिंग। द थर्ड टेक्निक जो है वो ओवरफ्लो एरिया, उसके जरिए भी हम इनकी हैंडलिंग कर सकते हैं। अभी हमने ओपन एड्रेसिंग भी देख ली, हमने चेनिंग भी देख ली, नाउ द थर्ड कम्स ओवरफ्लो एरिया। ओवरफ्लो एरिया बेसिकली क्या कर रहा है कि लिंक लिस्ट इज कंस्ट्रक्टेड इन स्पेशल एरियाज ऑफ टेबल। हम टेबल के एक हिस्से पे बाउंड्री बना देंगे, उसके आगे हमारा ओवरफ्लो, अगर कोई जाएगा डुप्लीकेट तो हम उसको वहां पे स्टोर कर देंगे। तो अगर आपका एच ऑफ के और जे जो वगैरह उसी पे कर रहे हैं तो के हमेशा पहले स्टोर हो जाएगा। और एडिंग ये है कि आप उसको पहले हैश करके कैलकुलेट करेंगे, फाइंड के, गेट द फर्स्ट स्लॉट इन द ओवरफ्लो एरिया, जो भी ओवरफ्लो एरिया है उसके अंदर आप रख लेंगे और उसको पॉइंटर उसमें रख देंगे। तो सर्चिंग आपकी सेम, फिर आपको सीधे जैसे लिंक लिस्ट को आप सर्च करते हैं, वी गो लाइक दैट वे। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मगर अब हम प्राइमरी एरिया और ओवरफ्लो एरिया को सेपरेट कर रहे हैं। तो ओवरफ्लो एरिया में we'll separate the table into 2 sections, the primary area to which keys are hashed and an area for collisions which we'll call the overflow area। तो ये बेसिकली आप ये देखें कि ये आपका ओवरफ्लो एरिया बनेगा, ये आपका प्राइमरी बनेगा। ठीक है जी, ये आपका ओवरफ्लो एरिया जो कलरिंग फर्क है, ये लाइट कलर में, ये डार्क कलर में है। ये हमने बाउंड्री लगा दी, K1 है यहां पर मैप हुआ, स्टोर कर दिया। K2 यहां पर प्राइमरी मैप हुआ, स्टोर कर दिया। K3 collision आ गया। When a collision occurs, a slot in the overflow area is used for the new element and a link from the primary slot is established। वो कैसे होगा, हम उसको लिंक बनाएंगे, यहां पर उसको स्टोर कर देंगे K3 को। अब collision हमने खत्म कर लिया। तो अगर हम इन तीनों को आपस में कंपेयर करें तो चेनिंग के केस में जो है यू कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एडवांटेज है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोलिजन्स, बट ओवरहेड क्या है कि आपको मल्टीपल लिंक लिस्ट रखनी पड़ती। इन केस ऑफ रीहैशिंग, फास्ट रीहैशिंग है, फास्ट एक्सेस है थ्रू यूज ऑफ मेन टेबल स्पेस, बट इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी नोन, क्योंकि हमने टेबल के अंदर स्टोर करना है, एंड मल्टीपल कोलिजन्स बिकम प्रोबेबल। ओवरफ्लो एरिया है, फास्ट एक्सेस है, collision doesn't use primary table space, but you have 2 parameters which govern performance and it needs to be estimated। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी एडवांटेजेस, तो चेनिंग में जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ कोलिजन्स हो सकते हैं, आप बड़े आसानी से हैंडल कर लेंगे। ओवरहेड ऑफ मल्टीपल लिंक लिस्ट है, ओपन एड्रेसिंग में फास्ट रीहैशिंग, फास्ट एक्सेस थ्रू यूज ऑफ मेन टेबल स्पेस है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी नोन, multiple collisions may become probable, overflow area, fast access, collision don't use primary table space, and 2 parameters which need governs to be estimated. The fourth technique is the bucket addressing. Another solution to the hash collision problem is to store the colliding elements in the same position in table by introducing a bucket with each hash address। वो हर हैश एड्रेस के साथ हम बकेट रख देंगे, अब उस बकेट के अंदर हम एक्स्ट्रा वो चीजें स्टोर करते जाएंगे।
A bucket basically क्या है? It's a block of memory space which is large enough to store multiple items. वो जब बकेट भर जाएगी तो हम उसके आगे लिंक दूसरी बकेट में डालना शुरू कर देंगे. अगर उसमें कोलिजन नहीं हो रहा तो हम उसको अपनी स्पेस में डाल देंगे. We will now see the applications of the hash tables. कंपाइलर में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है. They use hash tables to keep track of the declared variables. जो सिंबल टेबल मैंने कहा था, जब हम सिमांटिक एनालिसिस करते हैं उसमें इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है. कंपाइलर जब सिमांटिक्स एनालिसिस करता है. A hash table can also be used for online spelling checkers. If misspelling detection rather than correction is important, an entire dictionary can be hashed and words checked in constant time. Game playing programs में you can use the hash tables to store the scene positions, thereby saving computation time if the position is encountered again. Hash functions, they can be used quickly to check for inequality. If two elements hash to different values, they must be different. So when is hashing suitable? Hash tables are very good if there is a need for many searches in a reasonably stable table. Hash tables are not so good if there are many insertions and deletions or if table traversals are needed. In this case, AVL trees are better than the hash tables. Remember also, the hashing is very slow for any operations which require the entries to be sorted. For example, finding the minimum key. So that also needs to be taken care of. तो ये हमारा आज का लेक्चर था. आज हमने डिक्शनरीज के बारे में शुरू में आपकी बात की. वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट और उसमें हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा. अनसॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट, सॉर्टेड लिंक लिस्ट के हवाले से. एंड देन वी कम अप विद द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप टेबल के हम आए. उसका हमने कॉन्सेप्ट, उसके हमने ऑपरेशन से देखे. पिवट ऑपरेशंस इन सर्च फाइंड, हमने इस पे ज्यादा फोकस किया है. एंड इम्प्लीमेंटेशंस भी उसकी देखी. अब इम्प्लीमेंटेशंस में हमने उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हमने बात की. We talk about the array based, sorted, unsorted, linked list, sorted, unsorted. फिर हमने AVL trees and then हमने उसकी भी जो है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग के हिसाब से भी देखी. कोलिजन्स के केस को हैंडल नहीं कर रहा था. फिर हमने कहा कि हम लोग करती हैश टेबल्स कि हम उसको कीज को उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं. तो हमने हैश टेबल का कॉन्सेप्ट बड़ा थॉरली डिस्कस किया है. हैशिंग और हैश फंक्शंस को भी देखा कि हैश फंक्शन क्या है कि बेसिकली वो आपकी की को मैप करते हैं इनटू अ स्मॉल एड्रेस. और हैश टेबल की इम्प्लीमेंटेशन भी हमने वो देखी कि जी आप उसको एरेज से भी कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं. कोलिजन्स के हवाले से ज़्यादा बेहतर है कि हम उसको उस तरीके से कर लें. और अगर हम उसको उसमें करेंगे एरेज के साथ तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि उसमें आ सकती हैं आपकी कोलिजन्स. तो कोलिजन्स को अवॉइड करने के लिए हमने देखा कि हाउ वी कैन डू इट. वी कैन गो फॉर द चेनिंग अप्रोच है. ओपन एड्रेसिंग के साथ भी हम कर सकते हैं, ओवरफ्लो एरिया के साथ भी कर सकते हैं, पॉकेट के साथ भी कर सकते हैं. इन दी एंड हमने एप्लीकेशंस की बात की कि वेयर हैश टेबल्स कैन बी यूज्ड. हमने कहा था कि जी कंपाइलर में उसका बहुत इस्तेमाल होता है, गेम्स के अंदर उसका इस्तेमाल होता है. आई होप दैट टुडेज लेक्चर इज वेल क्लियर टू यू. तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.